So a very good evening to all of you. So today we will discuss yet another topic. As this topic I have discussed again, but as per your request, I'm discussing this topic again, and the topic is your soil science. As I told earlier, soil science plus soil fertility. Soil science you have to look upon into the just basics, some of the basic concepts you have to look upon. Mainly the questions comes from soil fertility, as I told you. We'll also go for organic farming, that I told, organic farming, system of crop intensification, watershed management. These are all the things what we will be studying in this lecture as given by the NABARD. They have given the syllabus. These are the points as we have discussed, like watershed management, soil fertility. We'll be discussing one by one, and I will be stressing upon those areas only where the question comes, because there are so many things to read upon. It is not time that we will discuss each and every detail topic in minutely. वो purpose नहीं है. Purpose is to highlight the basic areas from where they are asking the questions, and when you will revise again after this lecture, so stress upon those areas only, right? So as of you, all of you have the notes with you, I will carry on with the discussion. As we are discussing, the first topic given by the NABARD is precision farming. What is precision farming? As all of you know, the term only indicates what does it mean. Precisely you measure each piece of land, each square feet of land you are measuring, and you are giving your inputs, you are using your technologies as per that. Now the question आने के chances है, what are all the chances of asking question from this precision farming are two. दो points हैं यहाँ पे आपको याद रखने. First is use of ICT. As I told you, ICT जो question है बहुत ज़्यादा famous है, and UPSC has also asked last year in the prelims related to use of drones, right? And the next is Vaibhav Summit जो कि year 2020 में conduct हुआ था. They can ask some questions from here. तो यही दो areas है जहाँ से precision farming से they can ask the question. और एक क्वेश्चन हो सकता है सिंपल, दे विल गिव वन लाइन एंड आस्क यू व्हिच टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज. तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे कि दिस इज रिलेटेड टू प्रिसिजन फार्मिंग एज आई टोल्ड यू. ठीक है, यहाँ पे इनपुट हम प्रिसाइजली यूज करते हैं एक एक लैंड के पोर्शन के हिसाब से. ठीक है, ओवरऑल हम नहीं लेते हैं जो कि हम जनरली एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं. तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर वेरी जनरल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स है, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Now the point what needs to be explained is this Vaibhav Summit is very important. आपको क्या याद रखना है? What you need to remember is who conducted this. It was conducted by ICR and IARI when year 2020, and its full form what is talking about, right? It is talking about वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020, and इसमें हमने जितने भी चीजें डिस्कस ली, like use of sensors, what I was talking about, use of ICT, remote sensing, ठीक है, artificial intelligence, all these things we have discussed in this summit, that is Vaibhav Summit. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. जब हम ICT की बात करते हैं, when you are using the term ICT, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं what I will discuss here, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, the first is remote sensing drones in agriculture, very general. The question यहाँ से आ सकता है डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, that is very important. As I have discussed earlier also, Digital India, when it was launched, somebody will comment in the comment box when it was launched, launch of Digital India, which year it was launched, very important. Digital India, if you can recall, just a guess, somebody. 2015, very good, 2015. 2015 में ये launch हुआ था, and how many pillars it has, that is also important. How many pillars it has, that is also important. How many pillars? यहाँ पे पिलर नंबर 5 की बात की गई है, पिलर नंबर 5 की बात की गई है. So it has total, no, not 6, not 8, total 9. Somebody told 9, total 9 pillars. Please go through that. Please go through this Digital India. It is important. ये static portion है, but it is important. इसको थोड़ा आप देख लेना कितने pillars है Digital India में. It is very important. I will give one card also for this Digital India. It is very important. ठीक है, it is 9 pillar. Today we are talking about the pillar number 5. Pillar number 5 is related to what? It is related to electronic delivery of services and e-Kranti agriculture. इसी के अंदर आता है, that is pillar number 5 के अंदर. Pillar number 5 के अंदर जितने भी agriculture के हम electronic delivery कर सकते हैं services के, तो ये भी एक precision farming के हम अंदर ले सकते हैं. Digital India के अंदर इसको include करके हम पढ़ सकते हैं. That is important. Big data analytics, it is being used in which of the scheme? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिग डेटा एनालिटिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है अभी, इसको आपको याद रखना है थोड़ा सा. सेंस एग्री, यहाँ पे कुछ एप्स के नाम दिए, लाइक पूषा कृषि, किसान सुविधा, ये किससे आते हैं आपको देख लेना. इफ्को का जो लैब है, ग्रीन सिम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कुछ दिन पहले न्यूज में था.
ग्रीन सिम इसको देखना है। आश्याश्री ये वन तेलुगु पोर्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए। तो जितने इस तरह के अलग अलग नेम से रिलेटेड जितने भी ऐप्स है इसको अगर देख लेना, इसमें कुछ भूलने वाली बात नहीं है। वंस यू विल गो थ्रू दैट यू कैन इजीली रिमेंबर व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दिस प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फसल, नडमास, चमन एंड किसान, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स एंड व्हाट दे आर रिलेटेड टू, लाइक चमन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, राइट। इस तरह से कौन कौन से, लाइक किसान है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इनके फुल फॉर्म्स एंड व्हाट आर ऑल देयर बेसिक पर्पस, बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फसल की फुल फॉर्म, नेडमास की फुल फॉर्म, चमन की फुल फॉर्म एंड किसान की फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके ये चमन एंड फसल आर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, चमन एंड फसल आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गिवन बाय NABARD, दैट इज सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। ये NABARD की वेबसाइट में विजिट, दे आर वर्किंग, इस पे काफी काम कर रहा है NABARD भी, ठीक है। चाहे वीट हो जाए, ये सिर्फ राइस में ही नहीं होता है, बट दिस सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज बीन फॉलोड इन वीट में भी फॉलो करते हैं, मेज में भी फॉलो करते हैं, राइट। तो इसमें एक कीवर्ड है, दे कैन आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर रिलेटेड टू डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेशन में एक जो कीवर्ड है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज एग्रो इकोलॉजिकल इनोवेशन, AEI. This term in itself denotes your crop intensification system. इसमें क्या करते हैं हम, इसमें this is not a technology actually, it is innovation। आप कुछ चीजों को इनोवेट कर रहे हैं और वो चीजें ठीक है अभी तक फुल प्रूफ नहीं हुई है, बट इसके बावजूद भी दे आर गिविंग ए बेस्ट रिजल्ट। आने वाले टाइम में इसको टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बट स्टिल नाउ these are mental inputs, very important term, mental inputs। ये मेंटल इनपुट है, ठीक है, नॉट मटेरियल इनपुट। द जनरल एग्रीकल्चर व्हाट वी आर फॉलोइंग, दैट इज मटेरियल इनपुट। कितना ज्यादा हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, कितने ज्यादा हम पेस्टिसाइड ऐड कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल यू आर एडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। बट इन दिस सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन यू आर यूजिंग योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन को यूज करके, ठीक है, उन्हीं रिसोर्सेज से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। System of rice intensification is very important example for this SCI, that is system of crop intensification के जब हम बात करते हैं। तो system of rice intensification आप लोगों को पता होगा ये कब कहाँ से आया, right? ये कहाँ से आया आप लोगों को पता होगा, that is the first thing आपको इसमें याद रखना है। The next thing is, anybody can tell me who discovered this technology or promoted this technology? Name of the person, in which year, that is also important. Somebody? It was discovered in some 1983 by Henry Lau-Lanide करके कुछ नाम है, this one, in 1983. This person promoted this system of rice intensification, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। और इसके लिए एक्सटेंसिव अभी भी काम चल रहा है, दैट आई टोल्ड यू कि ये अभी भी फुल प्रूफ नहीं हुआ है, बट इससे रिलेटेड जितने भी काम चल रहे हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अभी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से रिलेटेड काम चल रहा है, राइट। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, दिस आर ऑल एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट होते हैं। तो क्या क्या हम इसमें मैनेज करते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज सीड रेट, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर इन SRA मेथड, दैट इज 7 to 8 kg। अगर आप एक हिल में सिंगल सीडलिंग को प्लांट करते हो, राइट, यहाँ पर अगर एक आप सीड लेते हो तो देन यू विल यूज 7 to 8, बट इफ यू आर यूजिंग 2 सीडलिंग्स पर हिल देन यू विल बी यूजिंग 12 to 15, ये वाला यूज करना है। तो दोनों सीड रेट्स यू मस्ट रिमेंबर। इफ आई टॉक अबाउट कन्वेंशनल सिस्टम, ये भी जान लीजिए, कन्वेंशनल सिस्टम जो सिंपल हम नॉर्मली पैडी ग्रो करते हैं, उसमें सीड रेट्स क्या क्या होते हैं, somebody can tell me, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हाइब्रिड्स के लिए you can remember for long duration, you can remember for short duration, you can remember for mid duration, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। राहुल सेड इट 100, ये जनरल रेंज है 100 kg पर हेक्टर, ठीक है राहुल, दैट इज ओके। बट व्हेन यू विल क्लासिफाई इट एज फॉर हाइब्रिड्स, इट एज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इट एज फॉर शॉर्ट एंड इट फॉर मीडियम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे सीड रेट्स थोड़ा हमें चेंज हो जाते हैं। तो हाइब्रिड्स में जो है दैट इज व्हाट इज हाइब्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट है 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, इसको याद रखना है। देन
लॉन्ग ड्यूरेशन में होते हैं इसमें सीड रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट इज 30 kg पर हेक्टेयर। मीडियम ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज 40 kg पर हेक्टेयर। शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज 60 kg पर हेक्टेयर। ये सारे TNAU वेबसाइट में डेटा मेंशन किया गया है, तो ये डेटा आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। राहुल, दैट इज टोल्ड, दैट इज आल्सो ओके। शांभवी 100 to 125 वो जनरल रेंज है, दैट यू कैन रिमेंबर, दैट इज ओके। बट ये अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि हाइब्रिड्स के लिए क्या होते हैं, ये भी आप याद रखिए। 20 kg पर हेक्टेयर, लॉन्ग ड्यूरेशन 30 kg पर हेक्टेयर, मीडियम के लिए 40 एंड शॉर्ट के लिए 60 kg पर हेक्टेयर। तो इफ एनीबडी कैन टेल मी व्हाई लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना वेरिएशन क्यों है? लॉन्ग में आप कहाँ 30 kg पर हेक्टेयर यूज कर रहे हो, बट इन short duration you are using 60 kg per hectare. What is the basic reason? Short में seed rate क्यों increase हो रहा है? Basic analytical question. Why it is increasing for short duration varieties? Seed rate ज़्यादा क्यों है? Why the seed rate is increasing when the duration of crop is smaller? ठीक है, maximum output ठीक है, but basic reason देखो जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होगा, व्हेनेवर द क्रॉप इज ग्रोइंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसका रोबस्टनेस ज्यादा होगा, ये स्प्रेड ज्यादा करेगा, राइट? ये स्प्रेड ज्यादा करेगा, क्रॉप जो है स्प्रेड ज्यादा करेगा। तो स्प्रेड ज्यादा करने की वजह से क्या होता है कि सीड रेट लॉन्गर ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। बट शॉर्टर ड्यूरेशन में स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ड्यूरेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनोवेशन की हम बात कर रहे थे, द इनोवेशन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, मैक्सिमम इनोवेशन जो SRI मेथड में है वो नर्सरी मैनेजमेंट में ही है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज रेट। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, नाबार्ड हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि 1 हेक्टेयर में SRI मेथड में क्या होता है। ठीक है, तो 100 स्क्वायर मीटर का मान लो आपको 1 हेक्टेयर एरिया में पूरे प्लांटेशन करने हैं, तो इसके लिए नर्सरी आपको कितने साइज का लेना है, 100 स्क्वायर मीटर का लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो यहाँ पे 2 लीफ स्टेज में ट्रांसप्लांटिंग करोगे इन 15 डेज। 15 डेज में आपको ट्रांसप्लांट कर देना है SRI मेथड, बट इन नॉर्मल इट गोज टू 20 डेज, 20 to 25 डेज के बीच में हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बट SRI मेथड में हम विद इन 15 डेज वी गो फॉर दिस ट्रांसप्लांटेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन दैट दे हैव डेवलप्ड इन दिस SRI मेथड। तो आपको याद रखना है कि कौन से इनोवेशन हमने किए हैं। फर्स्ट थिंग इज ट्रांसप्लांटेशन टाइम को हमने कम कर दिया है। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटेशन हमेशा यूज करते हैं इन SRI मेथड, स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटेशन, ये अगला इनोवेशन है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किस तौर पे हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अंडर सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है इनोवेशन। तो जिस भी क्रॉप के हम इनोवेशन को पढ़ेंगे, जैसे SRI इज द बेस्ट मेथड, तो क्या क्या इनोवेशंस आपने किए हैं SRI को SCI में लाने के लिए, दोज आर ऑल बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, आई थिंक द बेसिक फंडा ऑफ दिस SCI इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू कैन कमेंट यस और नो, देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। SCI इज क्लियर, व्हाट SCI इट इज, एंड आपको कहाँ से देखना है बेसिक थिंग्स। Okay, Rahul is saying yes. I think Rahul has only understood it. Okay, fine. Everybody is commenting. ठीक है, और एक दो बातें बता देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना। जो वेट एंड ड्राई मेथड ऑफ नर्सरी होता है, वेट एंड ड्राई मेथड ऑफ नर्सरी, इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि 1 हेक्टेयर के लिए 100 स्क्वायर मीटर चाहिए आपको एरिया। बट वेट एंड ड्राई मेथड जो कि नॉर्मल मेथड्स ऑफ नर्सरी है, इसमें अगर आपको 1 हेक्टेयर में करना है तो आपको नर्सरी एरिया कितने की जरूरत है? What necessary area do you require? Wet and dry method. Just we discussed, I am repeating it, just we discussed that in case of SRI method, the nursery area required for 1 hectare plantation is 100 square meter. But in case of wet and dry method, what is the area requirement for 1 hectare plantation? This question is also important. If anybody can tell, please comment in the comment box. Nobody? 1000 it is coming.
तो आपको याद रखना है अक्षय योगिता, आपको याद रखना है कि एज पर टीएनयू जो हम हमेशा रेफर करते हैं डेटा, उसमें दिया हुआ है 800 स्क्वायर मीटर्स। 800 स्क्वायर मीटर्स दे आर गिवन फॉर वेट एंड ड्राई नर्सरी मेथड्स के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज 800 स्क्वायर मीटर्स। एक यार्ड स्टिक है जो आपको याद रखना है हमेशा कि नॉर्मल मेथड्स में जैसा आपने बताया 1000 इट इज ओके, तो 1000 जो होता है नॉर्मल में होता है उसका 1/10 अगर हम कर देते हैं तो हमें एसआरआई मिल जाता है। ये भी आप याद रखना है। एसआरआई मेथड इज ऑलवेज, जो भी हम इनपुट्स नॉर्मल में मेथड करते हैं एसआरआई में जस्ट उसका 1/10 हमेशा हम यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया एज पर सिलेबस, दैट इज गिरधर व्हाट डू यू मिस्ड, आई टोल्ड अबाउट द सीड रेट। एसआरआई में हमने डिस्कस कर लिया सीड रेट, हमने नॉर्मल में मेथड में डिस्कस कर लिया सीड रेट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नर्सरी एरिया, व्हाट इज द नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट, वो हमने डिस्कस किया अभी कि एसआरआई में इट्स 100 स्क्वायर मीटर, बट इन वेट एंड ड्राई मेथड द नर्सरी एरिया रिक्वायर्स 800 स्क्वायर मीटर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सीडलिंग इज द ट्रांसप्लांटेशन, जब आप नर्सरी में ग्रो करते हो, द प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है, जब वो प्लांट में ग्रो नहीं होते, दैट इज सीडलिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही जनरल है, आप खुद एक बार गो थ्रू कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी आ चुका है, राइट। सिनोनिम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सारे जो है क्लोज सिनोनिम्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इसको ले लेना। ये ग्रेड बी में भी दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इन ग्रेड बी में दे हैव आस्क्ड व्हाट आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फार्मिंग, बायोलॉजिकल फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, मैक्रोबायोटिक एग्रीकल्चर, ऑल दिस आर सिनोनिम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको आप देख लेना। की पॉइंट्स यहाँ मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं, ये आप गो थ्रू कर लेना कि इंडिया में कितना % ऑर्गेनिक एरिया है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम ऑर्गेनिक एरिया, ये सारे स्टैटिस्टिक्स मैंने दे दिया। सबसे बड़ा कमर्शियल मार्केट कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक लैंड किस कंट्री के पास है, दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन सॉर्ट इट आउट फ्रॉम दिस चार्ट, ठीक है, एक बार देखोगे आपको इजिली याद रहेंगे। मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आईफोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल, इसके हेडक्वार्टर को याद रखें, दैट इज इन बॉन जर्मनी, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये हो गया। नपोप, नपोप के आप मिनिस्ट्री को याद रखिए, डोंट कंफ्यूज विद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डोंट कंफ्यूज विद रूरल डेवलपमेंट, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, नपोप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। जैविक भारत लोगो, ये किसने डेवलप किया, हु डेवलप दिस, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब ने मिलकर डेवलप किया, ठीक है, पीजीएस इंडिया, एफएसएसआई, नपोप, सब लोगों ने मिलकर जैविक भारत जो आप देख रहे हैं साहब पे लोगो, इसे सब ने मिलकर इसे डेवलप किया, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज दैट 3 इयर्स का कन्वर्जन मिलता है एज पर नपोप गाइडलाइंस के हिसाब से, 3 ईयर का कन्वर्स, मान लो आपके पास लैंड है दैट इज इनऑर्गेनिक लैंड, नाउ यू वांट टू ग्रो ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक का कंसंट्रेशन है इसको खत्म करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है इनऑर्गेनिक से जब आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना चाहते हो, दैट टाइम पीरियड इज 3 इयर्स, दिस यू कैन रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द स्कीम्स, जितने स्कीम्स हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक, पहले तो आप वो जान लो, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो वहां पे आप जल्दीबाजी में आपके, क्योंकि हम हमेशा पीकेवीवाई के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से, तो इन सब को आप मिस मत कर देना। ऑल दिस स्कीम्स आर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, चाहे वो पीकेवीवाई हो, चाहे वो MOVCDNER हो, चाहे CISS हो, नमूप हो, NFSM हो, या फिर अभी रिसेंट जो है इसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज आ रहे हैं, तो BPKP, इसके बारे में आप देख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके व्हाट असिस्टेंस दे आर गिविंग इन ऑल दिस स्कीम्स, और व्हाट असिस्टेंस दे आर गिविंग इन ऑल दिस स्कीम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक PKVY दे आर गिविंग असिस्टेंस ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 इयर्स, तो आपको एग्जामिनेशन में देना हो सकता है वो पर 2 ईयर कर दे, यहाँ पे हो सकता है पर 1 ईयर कर दे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड क्लियरली देखना है कि 50,000 पर 3 ईयर जहां होगा उसी का आपको टिक करना है, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया गया, लाइक 31,000 जो है ये ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए वो देते हैं आउट ऑफ दिस 50,000। अगर हम क्लस्टर फॉर्मेशन की बात करें, क्लस्टर फॉर्मेशन PKVY, तो इसमें कितने असिस्टेंस मिलते हैं, एनीबॉडी? फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन अंडर PKVY व्हाट असिस्टेंस डू यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट? Siddharth 3,000, Venkatesh 8,000. So no, it's not 8,800, it's 3,000, ठीक है, 3,000। तो आप देख लेना इन सारे फैक्ट्स को, थोड़ा सा आप रिवाइज करके देख लेना
कि किसमें कितना आपको एसेंसेस दिया जा रहा है। 3000 इज द राइट आंसर। नाउ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। अभी आप देखोगे पीआईबी में जब भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में बात होती है तो इस स्कीम के बारे में गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग कि आप वो प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आप देख लेना कि ये स्कीम कब लॉन्च हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना, ऐसे मैंने ऑलरेडी दे दिया शायद इसके बारे में। एंड इसमें असिस्टेंस पे देख लेना, उसमें 50,000 था, तो हियर असिस्टेंट इज हियर 25,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 इयर्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, ठीक, उसका हाफ है ये। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम किसके अंदर आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट कम्स अंडर एसएचएम, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम के अंदर आता है। एंड एसएचएम और एचसी में कुछ डिफरेंस है, दैट आई टोल्ड यू इन द ग्रुप। What is the difference between soil health management scheme and soil health card scheme? Basic difference क्या है दोनों में? What is the basic difference both the things? A very beautiful card was given in the group. Who has read that? He or she can easily tell the answer for this question. SHM and HC में क्या difference है? What you are promoting in SHM, what you are promoting in SHC? Forgot, not covered. So please go into the channel, टेलीग्राम चैनल एट क्लैरिटी फॉर श्योर, वहां जाके देखिए, वेरी ब्यूटीफुली एक कार्ड में समझाया गया है कि एसएचएम में आप क्या प्रमोट करते हो, एसएचसी में आप क्या प्रमोट करते हो, और बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नमूप। नमूप को ऑलरेडी मर्ज कर दिया गया, किस प्रोग्राम के अंदर से मर्ज कर दिया गया नमूप को, अंडर विच प्रोग्राम? देखो, इट इज नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, बट व्हाई दिस इज promoting organic agriculture? because ये बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहा है, एनएफएसएम, वेरी गुड, एनएफएसएम में से मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहा है, इसमें आपको क्या सब्सिडी दी जा रही है आप देख लेना। इसमें नेशनल फूड सेफ्टी मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी बायो फर्टिलाइजर्स के लिए कुछ सब्सिडी है। एंड व्हाट आई वाज लास्टली टॉकिंग अबाउट इज बीपीकेपी, इसके बारे में भी आप देख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेली कवर हो रहा है। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ रिपोर्ट्स आते हैं तो इस स्कीम्स के बारे में वो हमेशा कवर कर रहे हैं, तो दिस ईयर दिस स्कीम कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द बेसिक ऑफ सॉइल, तो हमने 3 टॉपिक्स देख लिए, कौन कौन से देख लिए, आपने समझ लिया कि कहाँ से उन एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सॉइल साइंस टॉपिक। इसमें आपको कुछ बेसिक्स देखने हैं, उतने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो जनरलिस्ट स्टूडेंट है उनके लिए, अगर लैंड डेवलपमेंट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस के लिए आपको इसमें डिटेल में जाना, नॉट इन द प्रीलिम्स। तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सॉइल साइंस? डाकुचेव, एवरीबॉडी नोज दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द सॉइल, दिस इज डाकुचेव। तो इन यहाँ पे जो टर्म्स है कुछ, इनको आप क्लियरली थोड़ा सा समझ लेना, जनरलिस्ट पीपल, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। व्हाट इज पेडोलॉजी, व्हाट इज इडेपोलॉजी, व्हाट इज पेडॉन एंड व्हाट इज पॉलीपेडॉन? ये चारों टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन देके आपको सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, व्हाट डज द डेफिनेशन इज डिफाइनिंग अबाउट। तो वेरी क्लियर हो जाना, पेडोलॉजी से रिलेटेड व्हाट इज पेडोलॉजी, व्हाट इज इडेपोलॉजी, व्हाट इज पेडॉन एंड व्हाट इज पॉलीपेडॉन, यहाँ पे आपको क्लियर होना है। नाउ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से एक ही क्वेश्चन आता है जो अगर जर्नलिस्ट के लिए आएगा, एक्टिव एंड पैसिव सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं वो आपको देखना है। तो एक्टिव वो होंगे दैट कैन जनरेट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट प्लस ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव फोर्सेस, यहाँ पे दिया हुआ है क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव फोर्सेस। पैसेज की बात करें तो पेरेंट मटेरियल और पेरेंट रॉक जो होता है, ठीक है, टोपोग्राफी एंड टाइम, दीज आर पैसिव फोर्सेस। तो इन दोनों के क्लासिफिकेशन को आप याद रखिए, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉक जो है, रॉक का विदरिंग होगा, आफ्टर विदरिंग योर रॉक इट फॉर्म्स द रेगोलिथ। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ सॉइल, व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ सॉइल? तो प्रीकर्सर ऑफ सॉइल इज, आपको ये टर्म याद रखना है, दैट इज रेगोलिथ, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म लाइक एडाफोलॉजी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। नाउ हम आते हैं फॉर्मेशन। देखो ये बेसिक प्रोसेस है, रॉक से जो मैंने आपको बताया रेगोलिथ फॉर्म होता है, रेगोलिथ से फिर सॉइल फॉर्म होता है। एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स के बारे में जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 2 चीज आते हैं, दैट इज फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफिक कौन कौन से? बेसिक आइडिया रखना, इसको आपको मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल। तो उसमें क्या होगा, एक ऑड वन आउट दे दिया जाएगा। तो फंडामेंटल में 3 ही प्रोसेस है, दैट इज हाई, HIE, ह्यूमिफिकेशन
इलुविएशन, एलुविएशन, ये तीनों आपको याद रखना है, दैट इज फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। ह्यूमिफिकेशन इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एलुविएशन मान लो सॉइल का सरफेस है, यहाँ से लीचिंग होके जो नीचे जा रहा है मटेरियल, मान लो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, दिस इज बीइंग लीच्ड विद द वाटर एंड इट्स गोइंग डाउन। तो जो प्रोसेस है गोइंग डाउन, इसको हम बोलते हैं ई से एलुविएशन, एंड जाके जब डिपॉजिट हो गया तो उसको बोलेंगे इलुविएशन, इन, आई फॉर इन, जाके वहां पे बैठ जा रहा है वो, दैट वी कॉल इट एज इलुविएशन। तो ये तीनों जो है, दीज आर फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। रोहित, वेट फॉर सम मिनट्स, यू विल गेट द ऑरिजिनेशन। सॉइल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद तो आप ऑरिजिन पढ़ोगे, या ऑरिजिन पहले पढ़ लोगे, फॉर्मेशन बाद में पढ़ोगे? Now coming on to the specific soil forming processes. तो specific में क्या हो जाए, पोर्जोलाइजेशन, लैटरलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन एंड ग्लेजाइजेशन। तो इसको आप बेसिक देख रहे हैं कि जैसे पोर्जोलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इट हैपेंस इन कूल क्लाइमेट एरियाज। जब हम लैटरलाइजेशन की बात करते हैं ये तो हॉट एरियाज में होता है। कैल्सिफिकेशन इटसेल्फ डिनोट्स दैट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इल्यूविएशन। हमने समझ लिया इल्यूविएशन क्या, नीचे जा रहा है मटेरियल, इन विच द ह्यूमस एंड सेस्क्यू ऑक्साइड्स बिकम्स मोबाइल। जो ह्यूमस कंटेंट होता है सॉइल में या सेस्क्यू ऑक्साइड्स होते हैं वो नीचे मूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट आर द सेस्क्यू ऑक्साइड्स? तो सेस्क्यू ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन 3 रहता है एंड अदर एलिमेंट इट इज 2। तो 3:2 रेशियो में जब भी होगा वी कॉल इट एज सेस्क्यू ऑक्साइड। तो उसके मूवमेंट को हम बोलते हैं पोर्जोलाइजेशन, जो कि कूल एरियाज में होता है। लैटरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलिका, ठीक है, प्रोसेस इन सिलिका इज रिमूव्ड। जो आयरन कंपाउंड या एल्यूमिनियम कंपाउंड में सिलिका आता है वो नीचे जाते हैं, तो वी कॉल इट एज लैटरलाइजेशन, जो कि हॉट एरियाज में होते हैं। कैल्सिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। अनदर इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है दैट इज ग्लेजाइजेशन। ये क्या होता है, मार्शी एरियाज में होते हैं, मार्शी एरियाज में ग्लेजाइजेशन होते हैं, एंड ये एनारोबिक कंडीशन में होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो। मार्शी एरियाज में जनरली ऑक्सीजन इज लेस, तो वहां पे सॉइल का जो है कलर चेंज हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉइल कलरेशन में इसको हम आगे डील करेंगे। सैलिनाइजेशन एंड डीसैलिनाइजेशन आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर एज द नेम ऑन द इंडिकेट्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन है, जस्ट एक एक बार इनके डेफिनेशंस को देख लेना, समझ लेना क्या प्रोसेस है, ज्यादा इसमें डिटेल में देखने की आपको जरूरत नहीं है। एज रोहित वाज आस्किंग द हॉरिजन ऑफ सॉइल, इट कम्स नाउ, ठीक है। तो हॉरिजन जो है सबसे जो टॉप होता है, एज द नेम ओनली इंडिकेट्स, ओ हॉरिजन, तो इट इज ऑर्गेनिक, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट यहीं पे होंगे। इसके बाद आता है ए हॉरिजन, उसके नीचे, जिसको हम सरफेस हॉरिजन भी बोलते हैं, राइट। आफ्टर सरफेस हॉरिजन इट्स बी हॉरिजन, जो आप देख सकते हो, सी हॉरिजन, एंड लास्टली इज पेरेंट रॉक वाला लेयर आ जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अब पहला जो 2 लेयर है इसी से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक जो लेयर होता है वो कौन सा होता है, ओ, ए, बी, सी। तो नाम ही से पता चल जाएगा, ओ। सरफेस हॉरिजन किसे हम बोलते हैं, तो ए लेयर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट वी कॉल इट एज सरफेस हॉरिजन। ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है। आर हॉरिजन जो है लास्ट है, बेड रॉक्स है, जिसे हम बेड रॉक हॉरिजन भी बोलते हैं। Now coming on to the properties of soil, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, they ask the question basically difference between texture and structure में पूछते हैं। तो अभी आपको हो सकता है ये आसान लगे, what is texture, what is structure, but when the question will come in the examination, it will become difficult for you, और उस सिचुएशन में आप हो सकता है गलत मार्क कर दो। तो सिंपल सा एक आप याद रखना, दोनों में जो भी टर्म हो, टेक्सचर पूछा जाए या स्ट्रक्चर पूछा जाए, तो उसमें ए आपको प्लेस करना है। यू नीड टू प्लेस द वर्ड ए, जहां पे ए फिट हो जाए वही आंसर होगा। तो ए आई मीन अरेंजमेंट, एस टी, यहां पे ए रख दोगे इट बिकम सैटरडे, एस ए टी। तो याद रखना कि स्ट्रक्चर डील्स विद अरेंजमेंट whereas टेक्सचर डील विद रिलेटिव प्रपोर्शन। तो डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉइल इज रेफर्ड एज सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, डेंसिटी, क्या, तो प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो इट डिफाइंस एट सॉइल टेक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट डिफाइंस अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सॉइल डेंसिटी हमने देख लिया, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल कलर। सॉइल कलर इज डिसाइडेड बाय योर मन्सेल चार्ट। मन्सेल चार्ट से हम सॉइल कलर को निकालते हैं, इस टर्म को याद रखिएगा एटलीस्ट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी पॉइंट्स टू रिमेंबर, सॉइल टेक्सचर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 mm से जो साइज होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, वी डू नॉट कंसीडर दो साइज।
तो पार्टिकल लेस देन 2 mm इज कॉल्ड फाइन अर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो जो फाइन अर्थ का डेफिनेशन है उसमें कितने पार्टिकल के साइज होने चाहिए, तो 2 mm से जो कम होते हैं उसी को हम फाइन अर्थ में कंसिडर करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सैंडी सॉइल जो है उसमें कॉम्पोजिशंस पूछ लिए जाते हैं कि सैंडी सॉइल में कितना परसेंट जो है मिनिमम सैंड सेपरेट्स होना चाहिए। तो सैंडी सॉइल है दैट मींस 70% जो बेसिक होगा वो सैंड होगा। अगर हम सिल्ट की बात करें तो बेसिक क्या होगा, मैक्सिमम उसमें सिल्ट होंगे। अगर हम क्ले की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है, दैट इज क्ले सॉइल में आपको 35% विल बी क्ले। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्केलेटन ऑफ सॉइल किसको बोला जाता है, सैंड सिल्ट, इसमें क्ले मत मिक्सअप करना। स्केलेटन इज डिफाइंड बाय ओनली सैंड एंड सिल्ट। जो क्ले है दैट इज आउटर कवरिंग एज ऑफ योर स्किन, ठीक है, लाइक आपके स्किन की तरह क्ले कवरिंग ऑफ सॉइल है, इट इज नॉट स्केलेटन ऑफ सॉइल। स्केलेटन ऑफ सॉइल इज ओनली सैंड एंड सिल्ट, ये आपको याद रखना है। Now bluish and greenish color of soil, as I told you, this happens due to anaerobic condition, जिसको हम ग्लेशिएशन भी बोलते हैं। ये नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन, IBPS AFO में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो bluish and greenish color of soil are generally due to poor drainage और anaerobic condition, anaerobic condition के चलते होता है, ठीक है। Now coming on to two things, that is particle density and bulk density। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है एंड बल्क का कम होता है, बिकॉज बल्क में हम क्या ले रहे हैं, ड्राई वेट लेते हैं, ड्राई वेट बाय वॉल्यूम। तो ड्राई वेट क्या होगा, जब भी वेट ड्राई होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका क्वांटिटी जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इस चलते क्या होता है कि बल्क डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे हमेशा ज्यादा होता है, ये आप याद रखना। बट पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है जब हम बल्क की बात करते हैं। तो ड्यू टू पोर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं, पोर स्पेस के ज्यादा होने की वजह से कॉम्पैक्टनेस नहीं आ पाती है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, बल्क डेंसिटी का कम होता है। ये रेंज भी पूछ लिया जाता है, तो पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी का जो रेंज आप जरूर याद रखिएगा, इसका रेंज कहां से कहां वेरी कर रहा है, 2.65 से 2.83, एंड इसका रेंज कहां से वेरी कर रहा है, 1.6 से 1.1। इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, दोनों को रेंज से दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन अर्लियर। तो दोनों के रेंज को याद रखिएगा कि कौन सा बड़ा होता है, विच इज बिगर, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, और दोनों के रेंजेस क्या है। स्पेसिफिक आपको नहीं याद रखना, एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर द रेंज ऑफ बोथ द डेंसिटीज। ये कुछ रिलेशनशिप्स है, यू कैन गो थ्रू दिस कि ऑर्गेनिक मैटर होगा तो कौन सा ज्यादा होगा, बल्क होगा, जब वाटर ज्यादा होगा तो कौन सा डेंसिटी ज्यादा होगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर्स के साइज पूछ लिए जाते हैं, ये दोनों आप देख लेना, ठीक है। सॉइल कलर जो कि मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर जब भी होगा तो सॉइल का कलर ब्लैक टू ब्राउन होगा, सेल्फ अंडरस्टूड है ये। आयरन जब भी होगा तो रेडिश ब्राउनिश कलर आता है सॉइल में। सिलिका होगा तो सिलिका ऑलरेडी यू नो व्हाइट होगा, ठीक है, लाइट कलर्ड सॉइल होगा। अल्टरनेट एंड वेटिंग हम वेरीगेटेड या मॉटल्ड सॉइल बोलते हैं उसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चलते होगा तो ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर होता है सॉइल में। ह्यू इज द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, ठीक है। क्रोमा इज द प्योरिटी ऑफ द कलर एंड वैल्यू इज द लाइटनेस ऑफ द कलर। ये क्या है, ह्यूमा, क्रोमा एंड वैल्यू, ये मंसेल चार्ट जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया उससे डिफाइन होता है। अगर आपको ये टर्म दे दिया जाए कि सॉइल कलर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो आपको याद रखना है जो पहला ये 2.5 YR 1 2 3 जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, इट डिफाइंस योर ह्यू, HVC इट डिफाइंस योर ह्यू। जो दूसरा टर्म है 5, इट डिफाइंस योर वैल्यू, एंड द लास्ट टर्म डिफाइंस योर क्रोमा। तो इन चारों चीजों को HVC कोड से याद रख सकते हैं। फर्स्ट 3 डिफाइंस योर ह्यू, द सेकंड लास्ट डिफाइंस योर वैल्यू, एंड द लास्ट डिफाइंस योर क्रोमा। Now types of soil clay, देखो soil clay से कहां से क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूं। एक्सपैंडिंग, नॉन एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ क्ले। 1:1 का एग्जांपल क्या है, दे आस्क। 2:1 का एग्जांपल क्या है, 2:1 का एग्जांपल क्या है, 2:1 का एग्जांपल क्या है। तो एक्सपैंडिंग, नॉन एक्सपैंडिंग बेसिस पर आप याद रखिए कि कौन कौन से क्ले एक्सपैंड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। 1:1 का एग्जांपल क्या है आप याद रखिए, 2:1 का एग्जांपल क्या है आप याद रखिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो इसका इलाइट है बेस्ट एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्लोराइट है, इसका क्वेलिनाइट है, स्पेक्टाइट एंड वर्मिकुलाइट कम्स इनसाइड 2:1 टाइप ऑफ क्ले। नाउ सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से टाइम, बस आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लेने हैं कि सरफेस एरिया जो मैक्सिमम किस क्ले का है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है मैक्सिमम वैल्यू किस क्ले का है। जस्ट यू हैव टू लुक अपॉन द मैक्सिमम वैल्यूज, व्हिच टाइप ऑफ क्ले इज हैविंग मैक्सिमम ऐसे, व्हिच टाइप ऑफ क्ले इज हैविंग मैक्सिमम सीईसी, बाकी चीजें आप छोड़ दो। तो सरफेस एरिया की बात करें तो देख लो, मॉन्टोमेटलाइट जो क्ले है उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है। सीईसी की अगर हम बात करें तो देख लिया यहाँ पे वर्मिकुलाइट का शायद नहीं, उससे ज्यादा ह्यूमस का, ठीक है। ह्यूमस तो चलो क्ले में नहीं आता, बट कंपैरिजन के लिए दिया हुआ, तो उस क्ले की बात करें तो वर्मिकुलाइट का सबसे ज्यादा 100 to 150।
जस्ट यू नीड टू लुक अपॉन दी मैक्सिमम रेंजेस एंड एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ 1:1 का क्या एग्जांपल है, 2:1 का क्या, इसका क्या एंड इसका क्या, यही आपको देखना। सी एन रेशियो अगेन इंपॉर्टेंट, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, खास करके ह्यूमस का कितना होता है, कंपोस्ट का कितना होता है, ये आपको जरूर से याद रखना है। 10:1 इज फॉर ह्यूमस एंड 25:30:1 इज फॉर कंपोस्ट। सी एन रेशियो क्यों कंपोस्ट के लिए एग्जांपल है, क्योंकि सी एन रेशियो अगर ये अचीव नहीं होगा आपका, दैट इज 25:30:1, तो कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए जब हम कंपोस्ट की पढ़ाई करते हैं तो हम सी एन रेशियो हमेशा देखते हैं कि इस रेंज में ही होना चाहिए, देन ओनली कंपोस्ट कैन बी फॉर्म, दैट्स व्हाई सी एन रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं सम अप करके, ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड, कि कब कब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे, कब कम होंगे, ठीक है, क्या कंडीशंस होते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना, वेरी इजी टू रिमेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल साइंस का ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉइल फर्टिलिटी, आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट पीडीएफ। सॉइल इरोजन से बेसिकली अभी तक उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है ज्यादा, तो आप इस प्रोसेस को देख लेना कि किसके बाद क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आएगा सॉइल हो गया, डीअटैचमेंट होता है, डीअटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, दीज आर द 4 स्टेजेस जो सॉइल इरोजन में होते हैं। Some historical soil conservation not so important, you can skip this first 5 year या second 5 year plan में क्या हुआ आप छोड़ सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो not so important for the examination, ठीक है। Now types of soil erosion, very easy to remember, geologic, wind and water, इन्हीं से soil का transportation हो सकता है। विंड इरोजन में फिर से प्रोसेस आप देख लेना कि कौन कौन से, जैसे हमने सॉइल में देखा तो इसमें क्या होता है, सॉल्टेशन होगा, सस्पेंशन होगा एंड सरफेस क्रीप होगा, तो ये प्रोसेस है किसका, विंड इरोजन का। वाटर इरोजन में जब आते हैं तो साइज आपको देख लेने की जरूरत है कि किस रेंज में क्या साइज है। स्प्लैश इरोजन होता है सबसे इनिशियल फॉर्म में, फिर थोड़ा सा ज्यादा जब होगा तो शीट फॉर्म में होगा, फिर रिल के फॉर्म में होगा, लास्टली गली, जो ग्वालियर मुरैना वाला रीजन है, ऑल वहां पे क्यों सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा, ठीक है, वहां पे ही आपको गली इरोजन मिलेंगे, ठीक है, गली इरोजन मुरैना ग्वालियर वाले रीजन में, तो गली इरोजन सबसे ठीक है। उसके बाद भी और एक फॉर्म आता है दैट इज टनल इरोजन, तो मोस्टली जो है गली इरोजन पाके रुक जाता है, टनल फॉर्मेशन जनरली नहीं होते हैं, तो गली इरोजन जो है मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, आपको याद रखना है। सबसे जो हार्श फॉर्म होगा वो क्या है, स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, वो आपको याद रखना है, स्प्लैश से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू टनल, बट मोस्टली वी सी दैट गली जो है वो फॉर्मेशंस होते हैं इसमें। सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो बेसिक बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, इंजीनियरिंग मेथड क्या, मिक्सअप करके यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है। मान लो 5 मेथड्स दे दिए, एक मिक्सअप कर दिया, एक बायोलॉजिकल बीच में उन्होंने डाल दिया, एंड ऑल द 4 ऑप्शंस आर इंजीनियरिंग, तो दे कैन आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंजीनियरिंग मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये आपको याद रखना है। एक आपको टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्रोस्टोलॉजिकल। What are agrostological method? If somebody can comment, what does this term stological means? Very important. What is agrostological methods of soil conservation? क्या है ये stological? What is this stological? Study of grass. Very good, अक्षय। तो जब हम ग्रासिंग कर देते हैं उस एरिया में, मान लो एग्रीकल्चर हमने क्रॉप्स ग्रो किए हैं, जहाँ पे बैरन लैंड्स है वहां वी आर ग्रोइंग द ग्रास, तो ग्रास की ग्रोथ को हम बोलते हैं स्टोलॉजिकल। तो एग्रोस्टोलॉजिकल इज ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अलोंग विद ग्रासेस। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेट करके पूछ लेते हैं, तो एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू योर ग्रासेस, ये आप देख लेना। सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाटरशेड में हमने डिस्कस कर लिया जो भी रिसेंट चीज है। तो IWMP, जो वहां से हम कहाँ पहुंच गए, हम WDC में पहुंच गए, IWMP 2009, एंड जब PMKSY आया इन 2015 तो उस समय इसका ये कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको पता ही ऑलरेडी। व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, कितना मिलता है, रिवीजन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंडर PMKSY व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन पर हेक्टेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड इन हिली एरियाज एंड इन नॉर्मल एरियाज, क्या फंड मिलता है पर हेक्टेयर, ऑलरेडी बताया है शायद मैंने पहले लेक्चर में भी, तो फिर से बता दे रहा हूं मैं। प्लीज 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 अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट्स। 10 at 10 जो क्विज चलाया था हमने उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो इट इज 15,000 याद रखना पर हेक्टेयर वाटरशेड के लिए, इन जनरल एरियाज, हिली एरियाज, इन जनरल एरियाज इट इज 12,000 पर हेक्टेयर, याद रखना। ये है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए।
और एक थिंग वाटरशेड से मुझे याद आया, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एक साल ये क्वेश्चन आ भी चुका है। जब हम वाटरशेड की पढ़ाई करते हैं तो यू नो दैट वाटरशेड व्हाट इट इज। यहाँ पे ऑल भी जितने ड्रेन ऑफ्स हो रहे हैं एक जगह के कन्वर्ज होते हैं, यहाँ पे वाटर का डिपोजिशन होता है। तो वाटर के डिपोजिशन होने से यहाँ के वाटर टेबल बन जाता है, ठीक है। वाटर का टेबल फॉर्मेशन हो गया, ये हाइड्रोलॉजिकल सोर्स है जहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है आपके पास। यहाँ से देखो क्वेश्चन आया, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। तो यहाँ से आप समझ लेना ये वाटर टेबल हो गया, यहाँ से वाटर फ्लो होके आ रहा है। तो जहां पे परमानेंट वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है, दिस एरिया जहां पे हमेशा वाटर रहेगा ग्राउंड के अंदर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन एरिया। सैचुरेशन एरिया जहां से वाटर फ्लो होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो होके आ रहा है तो वाटर विल नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल ओवर दिस पार्ट, so some part will be aerated, some part will be aerated, some part will be moistened, so we call this area as aeration area और zone of aeration and zone of saturation। तो वाटर टेबल जो होता है दैट इज ग्राउंड वाटर, वो जोन ऑफ सैचुरेशन में ही आता है, याद रखिएगा। जो ग्राउंड वाटर है दैट कम्स इन दी सैचुरेशन जोन। एंड यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड वाटर जोन जो सैचुरेशन एरिया होता है, जहां पे ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है जहां पे अगेन एंड अगेन वाटर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, रिचार्ज ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वी कॉल दिट एरिया एज एक्वीफर। ये पूछा गया था शायद एग्जामिनेशन में कि एक्वीफर क्या होते हैं, डेफिनेशन दे दिया गया था, यहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया था, दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट से ही। वाटरशेड डेवलपमेंट के जब जोन्स पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बता दिया सैचुरेशन जोन, सैचुरेशन जोन को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज रिहाटिक जोन। दैट इज रिहाटिक जोन के नाम से भी हम जानते हैं सैचुरेशन जोन को, याद रखिएगा रिहाटिक जोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WDC के बारे में बता दिया आपको, ये बता दिया। वन मोर थिंग कि जो पूरा प्रोजेक्ट होता है WDC का, एक मान लो आपको वाटरशेड डेवलप करना, वन विलेज यू नीड टू डेवलप वन वाटरशेड, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस, फॉर डेवलपिंग द वाटरशेड? What is the time period giving government is giving for developing a watershed in an area? How many years? Please, what is the time frame? 4 to 7 years. 4 to 7 years, याद रखिएगा, ये दिया जाता है। जिसमें भी फेजेस होते हैं, तो फेजेस को आप थोड़ा सा जाके नोट्स में देख लेना कौन कौन से फेजेस हैं। जैसे स्टार्टिंग फेज होता है, फिर प्रिपरेटरी फेज होता है, फिर कंसोलिडेशन फेज होता है। तो 3 से 4 साल, 1 से 2 साल इस टाइप से हैं, वो देख लेना। ओवरऑल इज मोर इम्पोर्टेंट, 4 to 7 ईयर दिया जाता है। तो WDC से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, वाटरशेड से और भी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, तो और भी आप देख सकते हैं। जैसे नीलांचल प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, वो कितने स्टेट्स में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं नीलांचल प्रोजेक्ट, हाउ मेनी स्टेट्स वी आर इंप्लीमेंटिंग द नीलांचल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट, इन हाउ मेनी स्टेट्स वी आर इंप्लीमेंटिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक नीलांचल प्रोजेक्ट, 9 स्टेट्स, ठीक है। तो WDCC यही एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज असिस्टेंस, मैंने आपको बता दिया 15,000 एंड 12,000 असिस्टेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जोन्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, एक साल कैसे यहाँ से क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंड लास्टली 4 to 7 ईयर जो है एक एरिया में WDC को डेवलप करने में गवर्नमेंट के द्वारा टाइम दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पुराने थोड़े पॉइंट्स है, इनको आप छोड़ दो तो चलेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ऊपर वाले जितने DPAP एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। इसको भी आप छोड़ देना, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दे दिया था कि वाटर कंजर्वेशन में कितने कितने असिस्टेंस है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, यू कैन स्किप दिस चार्ट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो वेन्यू था 14th COP का, राइट, वो इंडिया में था, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन एंड इरोजन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसको आप याद रखना है कि इसका क्या मोटो था एंड ऑल दिस थिंग्स, इसको आप देख लेना। वेन्यू क्या था, What was the venue of this COP? इंडिया में कहाँ वेन्यू था इसका COP 14 का? What was the venue of COP 14? न्यू दिल्ली और नोएडा? नोएडा, नोएडा में है, देख लेना ये कहाँ है, नोएडा, नोएडा में ही आई थिंक, ग्रेटर नोएडा। तो स्टेटस ऑफ डेजर्टिफिकेशन थोड़ा देख लेना, एंड प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे किए हैं कि कितने ईयर तक कितने लैंड को डिग्रेडेशन से बाहर निकाल लेंगे, वो थोड़ा सा टारगेट आप देख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। मेजर्स टू कर्व डेजर्टिफिकेशन, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वाटरशेड इन डिटेल, ठीक है। जो थोड़े बहुत नहीं किए थे वो मैंने अभी आपको बता दिया, जोन वाला, वाटर जोन वाला एरिया।
वाटरशेड देखो 3 to 7 years भी होता है, 3 to 8 दोनों चलता है, दोनों लिखा हुआ है, 3 to 8, 3 to 7, ये एक जनरल रेंज है। 60 to 40 है, ठीक है, ये आप देख लेना। अक्षय सिंह 26 million हेक्टेयर बाई 2030, ठीक है, गुड, जो हम डिग्रेडेड लैंड को चेंज करेंगे अच्छे लैंड से, ठीक है। नीलांचल प्रोजेक्ट दैट वाज डिस्कसिंग, इसको आप देख लेना थोड़ा सा, इसके बारे में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये एक पार्ट हुआ आपका खत्म, दैट इज सॉइल साइंस से रिलेटेड, एंड जो थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक थे। Now the more important topic is soil fertility is more important, what we will discuss right now. Soil fertility. So patience है तो I will go forward, patience नहीं है तो I will close the discussion. Shall I proceed further with the soil fertility? Yes, no? Okay, fine, fine. So a new screen appeared in front of you. So are you able to view the new screen and new PDF? Okay, fine. So we'll go with the soil fertility part. अभी तक हमने discuss किया, that is soil science or some of the organic agriculture से related. Now we'll discuss the soil fertility. यहाँ से basically ज़्यादा question आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस part को, ठीक है? ना देखो सॉइल, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन है एलुवियल सॉइल का ही है, दैट इज 43% इंडिया में। तो सॉइल ऑर्डर्स जो है, ऑर्डर से रिलेटेड मैंने एक ब्यूटीफुल कार्ड दिया आप लोगों को, उसको आप देख लेना थोड़ा सा। आई विल डिस्कस टुडे आल्सो, लास्टली एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा सॉइल ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो ये कुछ सॉइल्स इंडिया के, उनके फीचर्स आप थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना कि एलुवियल सॉइल जो न्यूएस्ट एंड सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, ये सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। इसके लोकल नेम्स क्या है, खादर एंड बांगर, ये देख लेना। ये गंगा ब्रह्मपुत्र वैली वाले जो रीजन है वहां पे मिलता है, जहां भी रिवर्स होंगे वहां पे जनरली एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। तो इनके फीचर देख लेना। ये मैंने लास्ट ईयर नोट्स दिया था और इसी नोट से एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, राइट। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और डायरेक्टली इस नोट से था। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल, राइट। तो ब्लैक सॉइल क्योंकि स्वेल एंड सिंक करता है ड्यू टू इट्स क्ले कंटेंट, तो इसको हम सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉटन ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ लेना है, कौन सा न्यूट्रिएंट किस सॉइल में ज्यादा होता है, किस सॉइल में कम होता है। Laterite soil, laterite comes with the word brick, आपको याद रखना है। They can ask you question which of the following soil is related to bricks, so it is laterite soil, ठीक है। कौन से सॉइल किसमें डेफिशिएंट है, किसमें रिच है, वो आप देख लेना। सॉइल पीएच एंड बफर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है, पीएच 6 to 6.5, इट इज द बेस्ट पीएच जहाँ पे कि न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा सप्लाई होते हैं प्लांट्स को, ठीक है। अगर 6 से 7.5 है पीएच सॉइल का, तो दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट पीएच ऑफ द सॉइल फॉर प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। इस रेंज में जो न्यूट्रिएंट है इजीली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे ज्यादा हो या कम हो तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है प्लांट का वो कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये रेंज दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। सॉइल फर्टिलिटी में दो टर्म, ये दोनों को बिल्कुल क्लियर याद रखना है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, एंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, द क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दोनों में क्लियर होना, वहां जाके कंफ्यूजन मत होना, नहीं होना चाहिए। और यू कैन राइट दी मार्क द राइट आंसर, एकदम क्लियर बैठा लो। एंड इस डेफिनेशन को भी देख लो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, ऑल द प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल बट ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप समझ सकते हो खुद। मैंने पीएच वाला जब कंसेप्ट आपको बताया उसी से रिलेटेड है ये। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया और किस साल दिया, ये आपको याद रखना है। अब यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉन मिनरल, मैक्रो एंड माइक्रो। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कितने नंबर किसके हैं ये आपको याद रखना है। तो नॉन मिनरल 3 है, CHO। मैक्रो में यहाँ पे 6 आते हैं, NPK, CAMGS, अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो एक माइक्रो वहां से डाल दिया जाएगा, ठीक है। माइक्रो में 7+1, बिकॉज एक का पोजीशन दैट इज निकल का पोजीशन जो है कोई मानते हैं ऑथर, कोई नहीं मानते, इसलिए 7+1 लिखा गया। तो ओवरऑल जो है आपके पास 17
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आपको याद रखना है 16 और 17। निकल को लोगे तो 17, निकल को नहीं लोगे तो 16। नेक्स्ट यहां से देखो फिर क्वेश्चन आता है, दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर, एंड इस चार्ट को आप रट जाना अच्छे से, मग अप दिस चार्ट, ठीक है। यहां से कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं एंड कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। लास्ट ईयर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। क्या क्वेश्चन आया था? यहां से ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन फीडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन फीडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। तो यही क्वेश्चन था डिट्टो, एंड अगला जो मैंने बताया सेल्फ फ्लोइंग वाला क्वेश्चन डिट्टो वहां से आया था। तो ये वाला यहाँ से आप कीवर्ड्स जितने याद रख सकते हो याद रखो और रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। फॉस्फोरस से रिलेटेड है तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ से याद रखिएगा और कीवर्ड्स को एक एक करके याद रखिएगा। नहीं है तो मैंने काफी सारे क्लासेस लिए थे इससे रिलेटेड लास्ट ईयर, यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है, आप सर्च करके उन क्लासेस को देख सकते हो अभी भी। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इट प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ द शुगर, ये है। एंड और एक चीज आता है यहाँ पे, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। देखो मूवमेंट ऑफ शुगर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर आर टू डिफरेंट थिंग। जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करें तो पहला ऑप्शन अगर आपको बोरोन मिले तो यू गो फॉर द बोरोन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया बहुत से एग्जामिनेशन में। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, कीवर्ड क्या है? ट्रांसलोकेशन है। तो ट्रांसलोकेशन शुगर से रिलेटेड जब भी अगर पहला ऑप्शन आपको बोरोन मिले तो यू गो फॉर बोरोन, अगर बोरोन नहीं है तो यू कैन गो फॉर द कैल्शियम, ठीक है। तो बोरोन मिले तो आप अच्छे से याद रखना, बोरोन के साथ जाना, नहीं है तो फिर कैल्शियम के साथ जाना। कीवर्ड्स कैसे आपको याद रखना है? फिर सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे बॉडी का क्या है? बोन है। तो प्लांट का ऐसे सेल वॉल बेसिक स्ट्रक्चर है, तो दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द कैल्शियम। तो कीवर्ड क्या हो जाता है यहाँ पे? सेल वॉल हो जाता है। सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैल्शियम होगा आंसर, ठीक है। मैग्नीशियम से रिलेटेड reinforces the cell wall, देखो यहाँ पे क्या है? It is a part of cell wall and holds them together, but if the keyword is reinforces the cell wall, तो आंसर फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इस चार्ट को रट सकते हो तो रट लेना, हो सकता है एक क्वेश्चन फिर से आ जाए इस साल भी इस चार्ट से, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक एक बार गो थ्रू कर लेना, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, याद जितना रखोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन में। not so important. Now this part is very important. इन ratios को याद रखना, ग्रेड बी में आई थिंक दे हैव आस्क्ड वन ऑफ द रेशियोज, चाहे यहाँ से कहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेड बी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इन रेशियोज को आप याद रखिएगा, खास करके इंडियन सॉइल में सी एन पी एस रेशियो क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। 144, 10:1.4:1.8 ये, एंड ये दोनों आप चाहो तो साथ में याद रखते हो। कोई एक दो डेटा याद रखो ताकि ऑप्शन देख के आप मार्क कर सकते हो, दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट। अगर हम एनपीके रेशियो की बात करें तो व्हाट इज द जनरल एनपीके रेशियो फॉर इंडियन सॉइल? ये सीएनपीएस रेशियो दिया गया। अगर हम एनपीके रेशियो की बात करें तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनपीके जनरल, क्या है वैल्यू? आज मैंने जो आपको पीडीएफ दिया उसमें भी ये दिया हुआ, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है। इट इयर्स विश्वजीत, राइट, वेरी गुड, आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दैट नोट्स। इट्स 4:2:1, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेशियो अभी आपको याद रखना है कि इंडियन सॉइल्स का जो है ये होता है। नहीं कुछ और है, ये आइडियल रेशियो है, एनपीके का ये आइडियल रेशियो है, कुछ और है इंडियन सॉइल का, आप देख लेना और जाके व्हाट इज द रेशियो दे हैव गिवन फॉर द इंडियन सॉइल एंड दिस इज द आइडियल व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड, ठीक है, 4:2:1। नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्ट, ये क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा जान लें। यस समृद्धि, वेरी गुड। द इंडियन का जो कंडीशन है 8.2:3.2:1 है, ये कंडीशन है, हमें पहुंचना है 4:2:1 में। ये क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्लासिफिकेशन को आप देख लेना, डोंट स्किप दिस, कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं सॉइल को। तो देखो सॉइल दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक जो हम देखते हैं एसिडिक, एंड अदर इज सलाइन, जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक वो सॉइल होंगे जहां पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, जहां भी पीएच 7 ग्रेटर देन 7 होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो फिर से जब हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में पीएच ग्रेटर देन 7 लेते हैं तो ईएसपी के हिसाब से हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेस देन 15, मोर देन 15। अगर ईएसपी ग्रेटर देन 15 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कली सॉइल, इफ इट इज लेस देन 15 वी कॉल इट एट सलाइन सॉइल। तब जब ESP is greater than 15 तो फिर से डिवीजन होता है on the based of pH, on the basis of electrical conductivity। तो इन क्लासिफिकेशन को जरूर से आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है एकदम क्लियर, एक चार्ट बना के आप बना सकते हो। EC लिख लिया, pH लिख लिया, ESP लिख लिया, उनके वैल्यूज को यहाँ लिख लो,
और यहाँ पे लिख लो टाइप ऑफ सॉइल, एसिडिक सॉइल, सलाइन अल्कली सॉइल। एक चार्ट से आपको ये याद रहेगा इजीली, ठीक है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सॉइल एमिलिएशन, कैसे आप एसिडिक सॉइल को ठीक कर सकते हो, कौन सा सॉइल अच्छा है कौन सा खराब है। तो मैक्सिमम केसेस में जिप्सम यूज होता है, याद रखना, ठीक है। सॉइल एमिलिएशन को आप देख लीजिएगा। एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें और एक ग्रीन कलर का आपको एक बॉक्स मिलेगा, थोड़े से एम्बिग्युइटी मिलेंगे, बट जब हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को तो देयर आर मेनी कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से निकाले गए हैं। इसको और ग्रीन वाले बॉक्स के दोनों क्रॉप्स को कंपेयर मत करना, वहां पे थोड़ा सा एम्बिग्युइटी लगता है डेटा में, बट सिंस दिस आर गिवन इन द बुक्स, बुक से ही लिया हुआ है, तो दोनों फॉर्म में आप याद रखिएगा। बिकॉज जब आप ग्रो करते हो क्रॉप को तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा वहां काम नहीं आते हैं, मेनी मोर थिंग्स आर देयर व्हिच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो उससे भी ये अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेना कि किसके मैक्सिमम है किसके मिनिमम वैल्यू है, यहाँ से देख लेना। And one more column you will get later on, that is green box वाला था, different types of you will get there, वो भी important है। saline soil को सोलन चौक बोला जाता है, it is chloride of sulfate and sodium। देखो ये जो types of soil है, saline हो गया या फिर alkaline हो गया, इसको आपको relate करके पढ़ना है, कहाँ से आपको relate करके पढ़ना है, इस box से, that we discussed, इस box से आप relate करके पढ़ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी confusion नहीं होगा। तो different types of soil, उनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक किस चीज से फॉर्म होता है, ये बस तीन चीजों को आपको याद रखना है। उनके रेंजेस को, पीएच के रेंज क्या है वो याद रखिए, उनके सिनोनिम को याद रखिए, एंड व्हाट विद दे आर मेड अप ऑफ बेसिक कंपोनेंट आपको बस यहाँ से याद रखना है। सलाइन सॉइल क्योंकि क्लोराइड्स ऑफ सल्फेट एंड सोडियम है तो कलर व्हाइट ही होगा, ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अल्कलाइन या सोडिक सॉइल को सोलानेट्स बोला जाता है, दीज आर कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। Now coming on to next part, salt tolerant crop, इसके रेंजेस आप देख लेना, एसिडिटी के रेंजेस हमने ऊपर देखे, ये salt tolerant रेंजेस है, इसको भी थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कवर कर लेना। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, इससे अगेन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगेन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो इरिगेशन वाटर क्वालिटी आप देख लेना कि दे विल गिव दिस वैल्यू कि 0.75 से 0.25 EC अगर है तो व्हाट टाइप ऑफ वाटर क्लास इट इज एट पर सैलिनिटी रेंज। तो आपको थोड़ा सा ये रेंजेस याद रखना है कि 0 से लेके 5 तक के वैल्यूज हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 तक खत्म हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया रखोगे ना तो ऑप्शन देख के मार्क कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देख के आप इजीली यू कैन मार्क फॉर दिस, ठीक है। इसके फॉर्मूला को लैंड डेवलपमेंट पीपल, दिस फॉर्मूला दे हैव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एसएआर का फॉर्मूला क्या होता है, सम लैंड डेवलपमेंट पीपल इज देयर, ये एसएआर का फॉर्मूला उन्होंने पहले पूछ रखा है। रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है, ये रेंजेस है, बस आपको इसमें ये देख लेना है। एंड वन ग्रीन बॉक्स दैट आई वाज मिसिंग, जहां से क्वेश्चन या दिस बॉक्स, यहाँ से देखो क्वेश्चन आ चुका है, इस बॉक्स को अच्छे से याद रखना है कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन से हैं, एंड लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा उन डेटा से आपको एम्बिग्युइटी मिलेगा, बट मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों एम्बिग्युइटी मिलेगा, बट जिस फॉर्म में दिया हुआ आप उसी फॉर्म में याद कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए, दैट विल सर्व द पर्पस। यहाँ साइंटिफिक दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मना कर रहा हूँ। अब एरिया वाली बात आती है, एरिया से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एरिया वाला दैट विल टेल यू, एरिया वाले पोर्शन को भी आई एम शेयरिंग यू द न्यू स्क्रीन फॉर यू। न्यू स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली दे आस्क दिस। तो देखो जो डेटा है पीडीएफ में वो थोड़ा सा ओल्ड है, उसमें थोड़ा सा उसको मत देखना कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा अल्कलाइन सॉइल है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा टोटल अफेक्टेड सॉइल्स है। यू डोंट लुक इनटू दिस डेटा थ्रू दैट पीडीएफ, यहाँ से देख लेना। दिस इज द लेटेस्ट डेटा एज पर आईसीआर मैंने लिया है, ठीक है। जब अल्कली सॉइल अभी भी हटा लो, यहाँ से देखना एक क्वेश्चन इस साल भी आएगा, 100% वन क्वेश्चन विल कम, प्रीलिम्स या फिर मेंस में आएगा। अल्कली सॉइल जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम अल्कली सॉइल? उत्तर प्रदेश लिख लेना, इस में देखो आप 13.20 उत्तर प्रदेश, इसके आसपास भी कोई नहीं है। फर्स्ट थिंग, सलाइन सॉइल किस स्टेट में सबसे ज्यादा है बताओ, यहां से देख के इस टेबल से। विच स्टेट हैज मैक्सिमम सलाइन सॉइल? गुजरात, वेरी गुड। एसिडिक सॉइल, विच स्टेट हैज मैक्सिमम एसिडिक सॉइल? केरला, केरला इज मैक्सिमम। तो तीनों को याद रखना है, यूजीके, यूजीके अल्कली फर्स्ट थिंग, उत्तर प्रदेश
saline गुजरात, सेकंड थिंग एसिडिक इज केरला, ये हो गया। एंड टोटल अफेक्टेड की बात करें, मतलब ये सॉइल प्लस ये सॉइल टोटल अफेक्टेड, तो इसमें भी केरला आ जाएगा ड्यू टू इट्स हाई दिस वन, सबसे ज्यादा केरला में ये सॉइल ये है, ठीक है, इसके चलते। तो इन चारों फॉर्म्स को आप याद रखिएगा कि टोटल पूछ दे तो किस स्टेट में ज्यादा है, सलाइन पूछ दे तो किस स्टेट में ज्यादा है, एसिडिक पूछ दे तो किस स्टेट में ज्यादा है। ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन और आगे भी आते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। दिस इज एज पर दी ICAR जो लेटेस्ट डेटा है वो है, ठीक है। वन मोर थिंग दैट इज बीइंग लेफ्ट आउट, दैट इज दी सॉइल ऑर्डर। सॉइल ऑर्डर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा बस, जस्ट अ सेकंड। शेयर या is the soil order figure in front of you, आपके पास है सॉइल ऑर्डर दिख रहा है, लास्ट फिगर है ये, यस। तो इसमें देख लेना, देखो एंटीजोल्स इंसेप्टिजोल कितने ऑर्डर्स होते हैं एटलीस्ट आप याद रखना है, 11 ऑर्डर्स आर देयर, आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ऑर्डर्स जो है 11 है, सब ऑर्डर्स 47 है, इतना याद रखो, नीचे वाले छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो है एंटीजोल्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर्स देख लेना। जैसे एंटीजोल्स है, इसको बोला जाता है कि ऑक्रिक एपिपेडॉन, मींस इसमें जो है स्ट्रैटिफिकेशन के सवाल नहीं होते, जो लेयर्स होते हैं ना सॉइल में, O A B हमने पढ़ा, वो लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे सॉइल में, बिकॉज ये सॉइल बहुत ही न्यू है। न्यू है, अगर न्यू है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना, विच टाइप ऑफ सॉइल इट विल रिप्रेजेंट? एंटीजोल ऑर्डर विल रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सॉइल? एलुवियल, ब्लैक, लैटेराइट? वेरी गुड, एलुवियल। अभी मैंने समझाया कि एंटीजोल्स जो होते हैं वो न्यूअर सॉइल्स होते हैं, न्यूअर सॉइल्स एलुवियल भी होते हैं, तो एलुवियल सॉइल रिप्रेजेंट्स योर एंटीजोल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। ये जो यूनिक वर्ड है ऑक्रिक एपिपेडॉन, ये वर्ड भी याद रखिएगा, इसको हमेशा रिलेट कीजिएगा किसके साथ? एंटीजोल्स के साथ। इंसेप्टिजोल थोड़ा सा ज्यादा अगर स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है तो एंटीजोल के बाद आते हैं इंसेप्टिजोल, ठीक है। मॉलिजोल जो थर्ड कॉलम है, मॉलिजोल, अल्टीजोल एंड अल्फीजोल, इसको बोला जाता है आर्जिलिक, आर्जिलिक सॉइल्स। क्यों? क्योंकि इन तीनों में क्ले फॉर्मेशंस होते हैं। तो पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्जिलिक, तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, मॉलिजोल, अल्फीजोल एंड अल्टीजोल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, which of the following is most weathered order of soil? Which of the following is most weathered? weathering सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजोल्स में सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है, ठीक है। मोस्ट वेदर्ड सॉइल इज ऑक्सीजोल्स। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें, विच ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द ब्लैक सॉइल, तो इट्स वर्टिजोल ऑर्डर ब्लैक सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। एंड रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो दैट थर्ड नंबर ब्लॉक, दैट इज मॉलिजोल, अल्फीजोल एंड अल्टीजोल्स रिप्रेजेंट्स योर रेड कलर सॉइल, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे चीज इजी है। हिस्टोजोल्स जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी का जमाव है, उस एरिया में आपको हिस्टोजोल्स मिलेंगे। एंडीजोल नाम ही है, ठीक है, वॉल्केनिक एरियाज में मिलेंगे। ग्लिएजोल्स परमाफ्रॉस्ट वेरी कूल रीजन्स में आपको मिलते हैं। एरिडीजोल नाम ही है, एरिड, तो ड्राई रीजन में मिलते हैं। तो ये था आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपको सॉइल साइंस में, सॉइल फर्टिलिटी में कवर करना है। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द थिंग्स विद इन, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको कवर करने हैं, from where basically questions are asked in the examination, ठीक है। तो I think this will suffice and overall मैंने view दे दिया। Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Okay, तो अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सॉइल साइंस वाले चैप्टर में। Now you can cover it easily, और कवर करने के बाद टेस्ट दो, जो चीज छूट गई है और टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि ये छूटा है, हो सकता है मेरे से भी छूट गया सेशन में, हर चीज तो याद नहीं रहता ना, तो वहां से आप उसको नोट डाउन करके थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखो, सी व्हाई द कंपटीशन इज लेस, मैं आपको एक बार प्लीज स्टे ऑन, मैं आपको और बात बताना चाहूंगा अभी कि देखो कंपटीशन देखने के लिए इतने स्टूडेंट बैठते हैं, देखने के लिए इतने स्टूडेंट बैठते हैं, कंपटीशन होता नहीं है। कंपटीशन कुछ गिने चुने बच्चों में ही होता है इन एग्जामिनेशन। अब देखो जैसे सेशंस में ही व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन इट वाज अराउंड 100 पर्सन्स वे आर वाचिंग, बट उनमें इतना पेशेंस नहीं रहा कि दे कैन कंप्लीट दिस ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, they left it out, around 60% are there in this session। तो इस यही होता है जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो कुछ ही मैं इसलिए बोलता हूँ, कुछ जो आप कंसिस्टेंट बच्चे हो ना, वो कंसिस्टेंट रहोगे तो लास्ट तक आपको इसका फायदा मिलेगा एंड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। जो पेशेंस लूज कर जाते हैं इतने में ही एंड दे डू नॉट वांट टू कवर द थिंग्स, तो आपसे तो एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट क्रैक एट ऑल।
ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, यू पीपल डेफिनेटली विल क्वालिफाई। बस पेशेंस का खेल है और कंसिस्टेंसी का खेल है। और नेगेटिव कभी मत होना, नेगेटिव एटीट्यूड कभी भी नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, करते रहिए। जब भी ऐसा कुछ मन में आया, नेगेटिव आया, यू टॉक टू मी, आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू पीपल। ठीक है, तो चलिए, विल मीट टुमारो विद अगेन विद न्यू टॉपिक। ठीक है, PDF is, I think, not editable. I think so. It is not editable. I have not tried it, but it is not editable. ठीक है, चलिए, I will end the session. It's too late. Okay. Good night, everyone. Goodbye.